students. Yesterday we had discussed about the chapter 5 plans in India, goals and achievements, and this chapter was finished in yesterday's lecture. Today we will discuss about its assignment. Students, this chapter is important for very short questions. Means one more question will be there in your exam from this chapter. So in this assignment, I have covered most of 1 mark questions. So first question is, what is meant by self-sufficiency? Self-sufficiency से आप क्या समझते हैं? Self-sufficiency means dependence on domestically produced goods, especially in the case of food grains. Second one is, what is the difference between objectives of planning and objective of planning? Students, objective of planning is the overall objective for the economic growth of a country, while objective of plan is for a particular plan. It is set for a particular time period. Next one is, name some important economists who estimated India's national income in per capita income initially. Students, initially per capita income and national income was estimated by Dadabhai Naoroji, William Digweed, then V.K. R.V. Rao and R.C. Desai. Next, what was the objective of second 5-year plan? The objective of second 5-year plan was to increase the industrial production. Students, जिस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, what was the objective of second 5-year plan? अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि इस चैप्टर से एक नंबर वाले क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, तो उस हिसाब से आपको हर एक 5-year प्लान का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे यहाँ पे मैंने सेकंड दिया, यहाँ पे आपसे कोई भी पूछा जा सकता है. What was the objective of first 5-year plan? What was the objective of fifth 5-year plan? What was the objective of ninth 5-year plan, and so on. When did Planning Commission abolish? Planning Commission was abolished in February 2015. Sixth question is, Planning Commission is replaced by dash in Feb 2015. It was, Planning Commission is replaced by Niti Aayog in 2015. What do you mean by directive planning? Directive planning is that kind of planning where government does not participate directly. Planning is introduced just to direct the forces of supply and demand in the economy. What was the period of ninth 5-year plan? Ninth 5-year plan started on 1st April 1997 and it ended on 31st March 2012. Students, अब ये देखिए दोबारा क्वेश्चन याद से चलिए, what was the period of ninth 5-year plan? इस तरह से आपसे किसी भी प्लान का पीरियड पूछा जा सकता है. नेक्स्ट वन इज, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? विच इज ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से लोग कुछ टाइम के लिए जो है अनएम्प्लॉयड रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो उस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर लेते हैं उसी टाइम में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है खत्म हो जाती है. नेक्स्ट वन, व्हाट आर द 2 ways टू इंक्रीज द जीडीपी? जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? फर्स्टली, या तो हम रिसोर्सेज को इंक्रीज करेंगे किसी तरह से, सेकेंडली या फिर टेक्नोलॉजी में नई इनोवेशंस लाई जाएंगी जिससे कि रिसोर्सेज को यूज करके उनका ऑप्टिमाइज यूज किया जा सके और प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके. नेक्स्ट वन, आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाट वाज द नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया? स्टूडेंट्स, वी नो that during British period, Indian economy was a backward and stagnant economy where GDP was very low. To give it a kick start, we need a big investment, which is possible only by the government. So, for the investment purposes, government need planning. Question number 12 is, what changes do you find in the conditions of infrastructure due to 5-year plans? स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रिटिश रूल के टाइम में इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो बहुत ही थोड़ी होती है, और हमारे 5-year प्लान्स की वजह से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में जो चेंजेस आए, यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में उनको लिखना है. हम लोगों ने पढ़े 2 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जो एक इकोनॉमिक चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेकेंड सोशल चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. और सक्सेस ऑफ प्लानिंग इन इंडिया में हम लोगों ने पढ़ा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से नंबर 1, रेलवे हैज बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क. सेकेंड, पावर जनरेशन हैज इंक्रीज फ्रॉम 2300 megawatt in 1951-52 to
3,30,861 megawatt in 2017, and IT sector development is well known. Because of it, India is a call center hub now. Next, social changes और social infrastructure में क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग schools और hospitals के बारे में पढ़ेंगे कि hospitals में increase की वजह से डेथ रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट में काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं, और स्कूल्स की वजह से स्कूल जाने वाले और कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स के रेट में क्या चेंजेस आए हैं. नेक्स्ट वन इज गिव अ क्रोनोलॉजी ऑफ 5-year प्लान्स इन इंडिया. क्रोनोलॉजी मींस सीक्वेंस कि आपके जो 5-year प्लान्स है उनका क्या टाइम पीरियड था, उसको यहाँ पे बताइए. स्टूडेंट्स, हम लोगों को पता है कि प्लानिंग कमीशन 1951 से जो है फर्स्ट 5-year प्लान को बनाया था. तो हम लोग जो क्रोनोलॉजी है इसको लर्न करने का मैं आपको एक मेथड बताती हूँ. हम लोगों ने सबसे पहले 5-year प्लान्स बनाए थे 3, देन 1 into 3 1 year short term periods, then 5 into 2, then 1 into 1, then 5 into 2, then 1 into 3, and then 5 into 5. This is the chronology. Sorry, 1 into 2. तो 5 into 3 का क्या मतलब है कि पहले जो है 3 प्लान जो है 5 साल वाले बनाए गए, जैसे कि फर्स्ट 5-year प्लान इट वाज स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल. अब ये भी चीज आपको याद रखनी है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च को इसकी एंडिंग है. तो यहाँ पे 1 अप्रैल और 31 मार्च ये आप लोगों ने याद रखना है. 1 अप्रैल 1951 में 5 year है तो 5 ऐड करके इट विल बी 56 एंड 31 मार्च 1956. इसके बाद 3 प्लान्स थे ना, पहला हो गया 1951 to 56. सेकेंड 5-year प्लान it will be from second 5-year plan it was from 56 to 61, likewise third 5-year plan 61 to 66. उसके बाद हमारे आ रहे 3 plans 1 year वाले, ठीक है. तो यानी कि 66 to 67, 67 to 68, 68 to 69. then 2 plans आ रहे 5-year वाले, तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं 69 to 74, 74 to 79, और इसके बाद एक प्लान 1 साल वाला. इस तरह से अगर ये टेबल को लर्न कर लेंगे तो आपको 5-year प्लान्स की क्रोनोलॉजी बनाना इजी हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन मॉडर्नाइजेशन एज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव. हम लोग प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स पहले कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन जो है इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस दोनों के लिए जरूरी होती है. इकोनॉमिक चेंजेस में मॉडर्नाइजेशन हम लोग ले लेंगे चेंज इन टेक्नोलॉजीज, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में HRS सीड्स आए और IT सेक्टर डेवलप हुआ. और सोशल चेंजेस के लिए हम लोग लेंगे मॉडर्नाइजेशन ऑफ थिंकिंग, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ती जा रही है. नेक्स्ट वन इज रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन 5-year प्लान्स वाज अ टेक्निकल मिस्टेक. डू यू एग्री विद दिस व्यू? स्टूडेंट्स, इस ये जो क्वेश्चन है इसके आप फेवर में भी लिख सकते हैं और इसके अगेंस्ट भी लिख सकते हैं. अगर आप इसके फेवर में लिखना चाहते हैं तो आप लोग ये लिखेंगे कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के ऊपर जो है हम लोगों ने बहुत ज्यादा जो है अपनी डिपेंडेंस शुरू की थी, जिसकी वजह से इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर तो बढ़ा लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा नहीं बढ़ पाई. पब्लिक सेक्टर होने की वजह से यहाँ पे करप्शन वगैरह भी ज्यादा थी, काम जो है काफी लेट होते थे, जिसकी वजह से जो प्लान्स है उनके टारगेट्स को टाइमली अचीव नहीं किया जा सकता था. और अगर आप लोग इसके फेवर में लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे क्योंकि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी उस टाइम एक बैकवर्ड और स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, जिसमें जीडीपी को एक बिग पुश देने के लिए हम लोगों को हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, जो कि सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू ही पॉसिबल थी. और गवर्नमेंट अगर जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में पैसा ना लगाती तो ये जो है डेवलपमेंट ना हो पाती. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन एनी 5 पॉइंट्स रिलेटिंग टू द सक्सेस ऑफ प्लानिंग. ये जो कल के लेक्चर में हम लोगों ने सक्सेस ऑफ प्लानिंग में टॉपिक किए थे ये वहां से आ जाएंगे, जैसे कि नंबर 1 इंक्रीज इन नेशनल इनकम, सेकंड इंक्रीज इन जीडीपी, थर्ड वन राइज इन इन्वेस्टमेंट एंड savings, fourth one institutional and technical changes in agriculture, fifth one infrastructure ले सकते हैं, industrial development ले सकते हैं, कोई भी point आप ले सकते हैं. Next, how can you say that planning has failed in
क्या फेलियर्स थे और उनकी वजह से हम लोग कौन से टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाए। तो उनमें क्या पॉइंट्स थे? फर्स्ट वन, एग्जिटिंग पॉवर्टी, सेकंड rise in inflation, third one, unequal distribution of income, and fourth one is inadequate infrastructure, and the last one is unemployment. तो स्टूडेंट्स ये जितनी भी असाइनमेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हैं। एक बात का जो आपने ध्यान रखना है कि आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच प्लान जो है आपने याद करने हैं,